हाय फ्रेंड्स, हम सब ज़िंदगी से प्यार करते हैं। हम सब की ज़िंदगी में प्यार है तो किसी न किसी का प्यार भरा साथ है। और दोस्तों, ज़िंदगी में इंस्पिरेशन के साथ चाहिए कुछ नयापन, कुछ नई बातें। और मैं मोनिशा, आपकी होस्ट और दोस्त बनकर दूंगी आपको कुछ हेल्थ मंत्रास, दिखाऊंगी कुछ नए नज़ारे और कुछ नई मुलाकातें इस अनोखे शो के थ्रू जिसका नाम है लव यू ज़िंदगी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी पावरफुल महिला से जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम कमाया है, जिन्होंने कामयाबी के बहुत सारे मंजिल हासिल किए हैं। इस बैंकिंग एक्सपर्ट ने ये साबित कर दिया है कि नारी किसी भी फील्ड में परफेक्ट से कम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इस अनोखी और अलग प्रतिभा से हमारे अगले सेगमेंट में, जो है स्पॉटलाइट। अब हम बैंकिंग फील्ड की एक ऐसी विदुषी से मिलने जा रहे हैं जिनके प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस खुल गई हैं और नॉर्थ ईस्ट में एक आर्थिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रूपाली कलिता जी से। मैम, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये मनी जर्नी कैसे शुरू हुई। मनी जर्नी शुरू हुई बैंकिंग करियर से, बिकॉज आई joined the State Bank Group in a regional rural bank जी, as a probationary officer in the year 1983. 1983। I just graduated that time. आप कितनी साल की थी उस वक्त? Not even 21 proper. अच्छा। Okay. In those days, I learned about Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, जी, which was a society founded by IDBI, IFCI, and NABARD for developing NGOs and CBOs in Northeast. They were looking for a banker, an official with a banking background to run their microfinance program. अच्छा। So I applied there, got interviewed and got selected. So that was in the year 2004 end when I joined there. And next year, board has given us the mandate to apply for a Reserve Bank of India license for doing microfinance, to register itself as an NBFC MFI. So we applied to RBI, got the license, separated ourselves from RGVN Society and became RGVN Northeast Microfinance Limited. Since then I was managing that organization, and we became a small finance bank in the year 2018. Ratan Tata has launched a bank on 17th June 2018 in Guwahati. So that's the journey till now. हम सभी को पता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना आसान काम नहीं है, और बैंकिंग भी वैसा ही एक क्षेत्र है, और बैंकिंग एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर है काफ़ी समय से। तो इस क्षेत्र में आपको सफलता पाने में किन किन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ा? क्या ये सेम था या एज ए फीमेल आपकी जर्नी थोड़ी अलग थी? It is really true that the moment you are an woman, internally they may appreciate your work, but at the same time they will have a tendency of looking down upon you, as if you don't understand that particular subject, as if whatever you are doing actually has been done with somebody else's help. अच्छा। So a woman have to work twice as hard and prove herself at every step. दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। That's a given अच्छा। for a woman. तो काफ़ी लंबा सफ़र था ये, और काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद आज आप यहाँ तक पहुँची हैं और आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है? North East Small Finance Bank is actually a differentiated banking concept. As RGVN North East Microfinance Limited, we have been providing credit and other financial services to the underserved and underprivileged populace of Northeast India. The moment we got the banking license, now we are capable of providing or are providing to all the banking services at the doorstep of the client, in addition to the credit delivery which we have been doing since last 15 years. तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस के लिए एक ही मंत्र होता है, यू हैव टू वर्क हार्ड जी, with a single-minded focus on your goal,
That's what sort of makes you successful. मैम, आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? I'd like to tell them that whatever you do जी। in your chosen line of activity, you have to be sincere in your effort and you have to be hardworking in your effort, and at the same time, whatever you do should be beneficial for at least a few people surrounding you. It should be beneficial for the society. It should be beneficial for the environment, for your surroundings. I think that makes the ultimate difference. मैम, हमें आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर कि हमारे यंगस्टर्स आपकी बातें सुनकर बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए लव यू जिंदगी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी धन्यवाद आप लोगों को। बैंकिंग फील्ड में रूपाली कलिता जो काम कर रही है, उसे रतन टाटा जैसे उद्योगपति ने भी सराहाया है। बस एक चिंगारी जलती रहनी चाहिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। और आज यही सीखने को मिला हमें रूपाली कलिता जी से। बैंकिंग फील्ड में आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैश के बगैर भी शॉपिंग की जा सकती है। आप मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो है स्टाइल रैप। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं आपको लेकर गई थी इम्फाल के ईमा बाज़ार में। जैसा कि आप जानते हैं कि ईमा बाज़ार केवल महिलाएं ही चलाती है, और ईमा बाज़ार इतना बड़ा और इंटरेस्टिंग है कि एक एपिसोड में उसको कवर करना तो बहुत मुश्किल था। और सच बताओ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं भरा है। इसीलिए आज मैं आपको एक बार फिर से ले चलती हूँ ईमा बाज़ार अपने स्टाइल रैप सेगमेंट में। ये कितने प्यारे प्यारे हैं। नहीं, ब्लू नहीं, रेड। हाँ, थैंक यू। है ना, कितने प्यारे प्यारे एंड कलरफुल। हेलो। मफलर। तो ये मणिपुर का ट्रेडिशनल मफलर है। इससे लोगों को वेलकम भी किया जाता है। मिनिस्टर्स हो या डिग्निटरीज हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी को भी आप वेलकम कर सकते हो इससे। बाहर से आते हैं जब टूरिस्ट, हो उनको वेलकम करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल मफलर है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल शॉल है। इट्स लाइक ए बेडशीट। अब ओके, ये सब हैंडमेड है ना? हैंडमेड है। दोस्तों, ईमा मार्केट के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा सा लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थापित है। जिस जगह इतनी सारी नारी शक्ति मौजूद हो, वो जगह तो पवित्र बनी जाती है। और इसी पवित्र जगह पे आपको मंदिर के भी सामग्री मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी पूजा की सामग्री मिल जाएगी। ये लड़का का है? अच्छा। ये बैम्बू से बना हुआ है, बहुत ही कलरफुल है बैठने के लिए, लाइक स्टूल। यहाँ पे बैग्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ कलर्स में भी आपको बास्केट्स मिलेंगे, या आप डस्टबिन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। ये मैट से बैठने के लिए नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों पर बैम्बूस की उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बैम्बू वर्क काफ़ी देखने को मिलता है और ये काफ़ी प्रचलित भी है पूरे भारतवर्ष में। वाओ दोस्तों, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी गुड़िया है जिन्होंने मणिपुरी लोकल क्लासिकल डांस का अटायर पहना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग कलर्स में महिलाएं कपड़े पहन के ये डांस करती हैं। वाओ, कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये था ईमा मार्केट का एक और सेगमेंट। है ना काफ़ी फैंसी, स्टाइलिश और कलरफुल ये ईमा मार्केट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट की किसी और मार्केट में मैं आपको अगले हफ्ते फिर से लेकर चलूँगी। अब वक्त आ गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है हेल्थ मंत्रा।
बदलते मौसम के साथ कई सारी जानलेवा बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन आदि। इन सब बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं अगरतला के पास स्थित रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के डॉक्टर KR मीना। डॉक्टर, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी डॉक्टर, आप यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ बड़ी नज़दीकी के साथ काम करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी बीमारियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे 2016 से पोस्टिंग हुई मेरी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। स्पेशली यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो ट्राइबल एरिया में स्किन डिजीज़ेज है, मालन्यूट्रिशन है, मलेरिया है और मदर एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम लोग काम करते हैं। जैसा कि आपने हमें बताया मेल न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप हमें ये बताइए कि मेल न्यूट्रिशन है क्या। फैमिली काफ़ी बड़ी होती है यहाँ पे ट्राइबल लोगों में। अवेयरनेस और शिक्षा की कमी के कारण ये लोग सही से खाना पीना नहीं हो पाता, अच्छा खाना नहीं खा पाते, इसलिए मालन्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। स्पेशली बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में मालन्यूट्रिशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे मलेरिया काफ़ी फैलता है, तो आप हमें ये बताइए कि मलेरिया से कैसे बचाव किया जाए। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो आसपास के गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है उनका सही तरह से निस्तारण करना चाहिए और पानी साफ़ सुथरा पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना है जी। और अपना जो रात को सोने से पहले या दिन में पूरे कपड़े ढक के पहने, हो सके उतना मच्छरों से बचने की कोशिश किया जाए। अब आप हमें ये बताइए कि मलेरिया को ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हीलिंग से कैसे ट्रीट किया जाता है। होम्योपैथी में स्पेशली सिंकोना, बेलाडोना और मलेरियम होम्योपैथी दवाइयाँ आती है जो कि मलेरिया के लिए स्पेशली काम करती है और काफ़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, प्रिवेंटिव डोज भी हम लोग देते हैं। जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे स्किन डिजीजेस भी बहुत फैलती हैं, तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे कौन से स्किन डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिलती है। दरअसल मैं जिस एरिया में काम करता हूँ वहाँ पर स्किन डिजीज़ स्पेशली एक्जिमा है। एक्जिमा एक तरह का स्किन डिजीज़ है जिसके अंदर छोटे छोटे रेसेस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है। उसके अलावा और जनरली जो जनरल लोकल स्किन डिजीज़ है वो सब होती रहती है। स्पेशली सही से पानी से नहीं नहाने के कारण और साफ़ सुथरा पर्सनल हाइजीन और मेंटेन तो उसके कपड़े हाइजीन से रिलेटेड कैसे लोग हाइजीन को मेंटेन कर सके, इसमें आप हमें थोड़ा सा बताइए। साधारण शब्दों में हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा खाना और साफ़ सुथरा पहनना ज़रूरी है। जी। ठीक है। और इसके अलावा आपको आसपास में भी लोगों को अवेयर करना है कि साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरा खाना है, साफ़ सुथरा पहनना है। आजकल ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हीलिंग और आयुष काफ़ी प्रचलित है, तो आप हमें ये बताइए कि आयुष है क्या। आयुष एक्चुअल में AYUSH टोटल 5 अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें A का मतलब आयुर्वेदा, Y का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्धा एंड सोवा रिगपा जो कि दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलन में है और H मतलब होम्योपैथी होता है। आयुष का जो रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है जो कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना करी थी। और इसके बाद में इन जो भी 5 सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इनका अपना अपना केंद्रीय अनुसंधान परिषद बनी हुई है। सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे होम्योपैथी का रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना करके और उसके बाद 3-4 प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं स्पेशली स्किन डिजीज के लिए, मलेरिया के लिए, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए। जी। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर जो भी जितने भी मरीज आते हैं उनका होम्योपैथी से और नेचुरोपैथी सिस्टम और योगा से ही ट्रीटमेंट करते हैं। जी डॉक्टर, लोगों का ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हीलिंग में भरोसा इतना मजबूत नहीं है, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। एक्चुअल में लोगों तक इन सब जो जितना भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनकी जानकारी पहुंच ही नहीं पाई है। उससे सबसे पहले अवेयरनेस की कमी है। बाकी सिस्टम और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी तरह का कोई कमी नहीं है। लोगों में भ्रांति है कि ये सारे सिस्टम धीरे काम करते हैं या सही से पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। कुछ बीमारी में जैसे आप एलोपैथी दवाइयाँ, डायबिटीज़ है और इसके अलावा हाइपरटेंशन है, अस्थमा है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिनमें आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन आप अल्टरनेटिव सिस्टम का सहारा लेकर के आप जल्दी ही पूरी तरह से जड़ से निजात पा सकते हो। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए लव यू जिंदगी के इस हेल्थ मंत्रा सेगमेंट के द्वारा हम ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हीलिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ऐसे ही और भी जानकारी देने के लिए हम और आप मिलते रहेंगे। डॉक्टर, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की नारी आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन आज की नारी के पास सिर्फ ड्रीम्स नहीं है बल्कि रियलिटी भी है। अगर आप भी आसमान में उड़ना चाहती हैं तो आप एयर होस्टेस ज़रूर बन सकती हैं, पूरी दुनिया घूम सकती है और एक बहुत अच्छी सैलरी भी कमा सकती है। तो दोस्तों, चलिए आपको हम उड़ा के लेकर चलते हैं गुवाहाटी के एक एयर होस्टेस एकेडमी में, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जो है career.com।
हमारे साथ है इस इंस्टीट्यूट की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मम्पी बोरा। डॉक्टर मम्पी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो लव यू जिंदगी में। थैंक यू सो मच। आज हमारे दोस्तों को आप एविएशन के करियर के बारे में खुल के बताइए। एयर होस्टेस बनने के लिए 12वीं पास करना अनिवार्य है। उसके बाद आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो एयर होस्टेस बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एयर होस्टेस बनने के लिए ज़िम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। साथ में फ़िज़िकल फिटनेस भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप घंटों तक खड़े रहकर चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है, ताकि किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सके। डॉक्टर मम्पी, ऐसा माना जाता है कि एयर होस्टेस का करियर सिर्फ 8 से 10 साल तक ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10 साल बाद बेरोजगार नहीं होते हो। आपको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशंस के बाद आपको ग्राउंड में शिफ्ट किया जाता है। आप ग्राउंड ड्यूटीज़ या मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के साथ अपने कैरियर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो किसी भी इंस्टीट्यूट पर एज अ ट्रेनर भी काम कर सकते हो। तो इस करियर की तैयारी कैसे की जाए? आप एयर होस्टेस अगर बनना चाहते हैं तो किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसा हमारा ये इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आपको एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी जानकारी आप इंटरनेट में पा सकते हैं। और एयर होस्टेस बनने की उम्र तय की गई है, जिसकी सीमा 18 से 25 साल के बीच होती है। अच्छा, तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में हमें बताइए। अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस होता है, पर्सनल इंटरेक्शंस होता है। कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं जो अभी क्लास 12 के परसेंटेज देखते हैं, जिसमें 60% एंड अबव होना चाहिए। अच्छा, तो 60% एंड अबव लाइए, एयर होस्टेस बनिए और पूरी दुनिया घूमिए। डॉक्टर मम्पी, थैंक यू सो मच कि आपने एविएशन से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर Thank की। you so लव यू सो मच फॉर दैट। मिस्टर फ्रैंक, आपका इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे सहयोग दे रही है? In the last few years that we've been working in the Northeast, 70% of most of the students who are here with us are mostly girls. Girls who come in from the urban areas and girls who also come in from minority communities. And as an institution, we're very proud to share that we have empowered a lot of them professionally, especially with their etiquettes, their manners, and in their communication skills. And we also very happy to know that a lot of them have actually done very well in life, and they pick up a lot of good tenets like good etiquettes, like how to communicate and how to behave in a very professional manner. And so, as an entire team here at Jetwings, we're very happy to know that we have played a small part in empowering a lot of the girls who are from this part of the world. मिस्टर फ्रैंक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. दोस्तों, आपने बहुत सारे सितारे देखे होंगे, या तो बिग स्क्रीन में या फिर स्मॉल स्क्रीन में, करेक्ट? लेकिन अगर वही सितारे आपके घर उतर आए और अपनी दिल की बातें आपसे कहे तो क्यों दिल धक धक होने लगा ना? लेट्स मीट वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स और सुनते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है ग्लैम शैम। लव यू जिंदगी, जिंदगी से प्यार आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सब करते हैं, करना भी चाहिए। दोस्तों, लव यू जिंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारतीय दूरदर्शन ने क्रिएट किया है। इसके तहत हम क्या जान सकते हैं या हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत कुछ पता चला है कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। मैं दोस्तों हिंदुस्तान पूरा घूमा हूँ, बहुत जगह गया हूँ। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी शूटिंग के लिए गया हूँ, राजस्थान से सेंटर ऑफ इंडिया शूटिंग के लिए गया हूँ, कलकत्ता तक गया हूँ। शूटिंग के सिलसिले में कई बार मुझे जाने का मौका मिला नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नहीं जा पाया। और मैं इसे अपनी बदकिस्मती कहता हूँ, क्योंकि इतना सुना है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इतना सुना है, इतनी खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि वो ईश्वर के बहुत करीब है वो स्थान। सूर्य देवता सबसे पहले वहीं पे ही लोगों को दर्शन देते हैं, हम लोगों तक बाद में पहुंचते हैं।
और वहाँ के लोकेशंस तो हैं ही कमाल। ब्रह्मपुत्र नदी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी, और वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का गायन, वहाँ की फोक फॉर्म्स हैं। मतलब बेसिकली मैं थिएटर से हूँ तो मैं ये सब जानता हूँ कि फोक फॉर्म्स क्या होती हैं। तो वहाँ की फोक फॉर्म्स जो बहुत ही बेहतरीन है। इवन हमारे एनएसडी के रतन थय्यम इतने फेमस जो हमारे थिएटर की पर्सनालिटी हैं वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। मुझे बहुत प्यार मिला है नॉर्थ ईस्ट में। मुझे आप लोग, मैं जानता हूँ कि मुझे वो गुलशन गुलफाम से जुनून, स्वाभिमान, तारा उम्मीद, शतरंज, राहत, ना जाने कितने शोज़ आपने मेरे देखे। मुझे बहुत से ख़त आते हैं, और आजकल ये सोशल मीडिया हो गया है तो मुझे बहुत से फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से। और आजकल मेरा जो शो तेनालीरामा चल रहा है, तथाचार्य वाला, जिसको आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जिसका बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन रिस्पांस मुझे नॉर्थ ईस्ट से मिल रहा है। तो बस अब मेरी यही इच्छा है कि शीघ्र, अति शीघ्र आप सबसे मिलने के लिए, आप सबका प्यार पाने के लिए मैं नॉर्थ ईस्ट आऊँ। तो ज़रूर आऊँगा, अवश्य आऊँगा। लव यू ज़िंदगी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। इन स्टार्स को देखकर बस यही कहने का दिल करता है that we love you and love you जिंदगी। दोस्तों, अब आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अनोखा शो लव यू जिंदगी जरूर पसंद आया होगा। हम और आप फिर मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट की एक नई सुपर वुमेन के साथ, आपको हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा लव यू जिंदगी के एक नए और अनोखे एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, फिर मिलते हैं। आप मेरे ठीक ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं। क्या ये दो? I forgot, seriously I forgot now.